Friends, namaskar to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Sarikumania. Today, again, I will discuss a very important topic of Keynesian theory of economics. Today, I will discuss determination of equilibrium level of income or output or employment, and it is a very good topic of Keynesian theory. Today, in this topic, I will discuss two types of equilibrium. One is aggregate demand, aggregate supply approach. Another one, saving and investment approach. If disequilibrium is there, how can what type of measures should be taken to bring back the economy again to the equilibrium level? So, my friends, please comment me, subscribe me, and also like me. Due to your comment, I will get motivation. I will modify my in my subsequent videos. I will modify it, and I bring some good videos. So also you like me and subscribe me. My channel is Asit Sarikomania. सो अभी हम ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. We know that according to Keynesian theory, in economy, equilibrium is determined in terms of aggregate demand and aggregate supply. So how to detect the equilibrium level of income or output or employment in the economy? So we know that it means at equilibrium level, aggregate demand equal to aggregate supply. So in two sector model, aggregate demand mainly depend upon household consumption expenditure and private farms investment expenditure. So in two sector model, AD is equal to C plus I. It is the planned expenditure of the household sector and planned expenditure of the farm sector. And in case of farm sector, it is planned investment expenditure. So AD is equal to C plus I, household consumption expenditure plus private investment expenditure in two sector model. And in case of aggregate supply, in my previous video already I have discussed, मैं already बोल चुका था कि aggregate supply is equal to national income, and national income split up into consumption and saving. So aggregate supply is equal to national income is equal to consumption plus saving. So the formula of aggregate supply is C plus S. We know that aggregate demand is planned expenditure. It is planned expenditure of the household sector and farm sector. And aggregate supply is the planned production of the producers during a given period of time. Given period of time means it is during accounting year. Clear? So if aggregate demand equal to aggregate supply, okay, at equilibrium level, then you see three equations already I made. So substitute equation 2 and 3 in equation 1. So ultimately we get S is equal to Y, saving is equal to investment. So now I am going to discuss two approaches for determination of equilibrium level of income in short run. आज जो मैं discuss करूँगा, today I will discuss equilibrium level of income or output or employment. It means how to achieve equilibrium level of income or output or employment. So two approaches are there. One is aggregate demand, aggregate supply approach. So sometimes aggregate demand approach is C plus I approach, because aggregate demand is equal to C plus I. C plus I, it is C is household consumption expenditure and I is private investment expenditure. So aggregate alternatively, this approach is called C plus I approach. So first approach is aggregate demand, aggregate supply approach, ADAS approach. So through this approach, we can determine the equilibrium level of income or output or employment. We know that the determination of income, it is the most important part of Keynesian theory. Clear?
So in two ways we can obtain equilibrium level of income or output or employment. Okay, so in aggregate demand aggregate supply approach, the equilibrium level of income is determined when aggregate demand is equal to aggregate supply. Same thing I have written. Already I told you aggregate demand approach is C plus I approach. So how to obtain equilibrium level of income? हमको कैसे equilibrium level of income और output और employment प्राप्त होगा जब aggregate demand aggregate supply से समान होगा. Aggregate demand, it is the planned expenditure of the household sector and planned planned investment expenditure of the farm sector. So it is the two sector model, and it is it means now it means we are discussing equilibrium level during short run. Clear? So aggregate demand equal to aggregate supply, then we can obtain equilibrium level of income or output or employment. So aggregate demand equal to aggregate supply means it is the planned expenditure, it is equal to planned production. Planned expenditure incurred by the buyers, हमको actual expenditure नहीं लेना है, planned expenditure लेना है. Planned, intended or desired expenditure of the buyers is equal to planned production of the producers during an accounting year. Okay, so AD comprises consumption expenditure and investment expenditure. So हमको कब equilibrium प्राप्त होगा, equilibrium level of income और output and employment, जब aggregate demand aggregate supply से समान होगा. जब planned expenditure of the household sector and farm sector is equal to the planned production of the producers in an economy, तब हमको equilibrium level of income और output और employment प्राप्त होगा. Aggregate supply में सेम चीज लिखा कि aggregate supply is the desired level of output in the economy. It is the planned level of output. It is the planned level of output in the economy. Already the producers they have made plan how much output they want to going to produce. Already they made plan. According to the plan, actually they make investment. They make investment on machine, tools, equipments and raw materials, and according to this they recruit workers. So according to the plan, actually they produce, okay, goods and services. Okay, so how to obtain equilibrium level of income or output or employment? Now when aggregate demand is equal to aggregate supply, when planned expenditure is equal to planned production, planned expenditure of household sector and farm sector must be equal to the planned production of the producers, okay, in an economy. So here you see assumptions before making schedule. I have taken some assumptions. It is autonomous investment, it is rupees 100 crores. Already I told you autonomous investment, the investment which is not influenced by level of income and output. ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली ये इनकम और प्रॉफिट से प्रभावित नहीं होता. एट एनी लेवल ऑफ इनकम, एट एनी लेवल ऑफ इनकम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रिमेन्स सेम. और यहाँ पर एक कंजप्शन इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन ऑफ द कंजप्शन फंक्शन C is equal to 50 plus 0.5 y. 50 is autonomous consumption, 0.5 is the slope of the consumption curve, it is MPC 0.5. It means 50% of additional income used for consumption. Additional income का 50% हम additional consumption करेंगे. So 0.5 y. According to this actually we make table or schedule. तो यहाँ पर बहुत चीज लिख दिया. शेड्यूल देखिए रुपीज इन करोड्स. सो यहाँ पर MPC 0.5 मीन्स autonomous consumption is 50. So at zero level of income you see autonomous consumption expenditure is it is 50 crores. Then automatically saving is minus 50. Saving is Y minus C. Autonomous investment, the investment which is not influenced by income and profit, at any level of income it remains same. How to obtain aggregate demand? It is C plus I. It is consumption expenditure plus autonomous investment.
and aggregate supply it is C plus S. We know that aggregate supply it is C plus S. So you see, it is just to remember how to remember the schedule. What is the trick to remember the schedule? क्या ट्रिक है टेबल को रिमेंबर करना है? बस दोनों चीज को आपको याद रखना है, Y एंड C, इनकम एंड कंजप्शन. देन अदर चीज आप आराम से निकाल दोगे. और यहाँ पर तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में ले चुका हूँ. ओके, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है. At any level of income, my investment remains same. And here in assumption, I have taken already rupees 100 crores autonomous investment. So here MPC is 0.5 means 50% of additional income used for consumption. So यहाँ पर सभी समय इनकम इंक्रीज कर रहा है 100 करोड़. इनकम इन माई शेड्यूल I means already I have assumed that income at any time income increased by rupees 100 crores. Additional income is 100 crores. Then 50% of additional income, 50% of rupees 100 crore, it is 50. So here income increased by 100 crores and consumption increased by 50 crores. Then automatically additional consumption must be 50% of additional income. Clear? So according to in consumption equation already I have taken MPC 0.5. MPC is what? What MPC shows? It is MPC 0.5 means it is 0.5 means 50%. So 50% of additional income used for consumption. So if additional income means increase in income. So here increase in every time increase in income is 100 crores. Then 50% of increase in income used for consumption. So 50 increase in income is 100 crores. 50% is what? 50 crores. So always income increase by 100 crores and consumption increase by 50 crores. Then automatically you see delta C by delta Y, it is 0.5. Every time delta C is 50 crores and delta Y is 100 crores. Additional consumption is 50 crores and additional income is 100 crores. Okay, always income increase by additional income means what? Income increase by 100 crores and additional consumption means what? Consumption increase by 50 crores. So according to this saving investment ADAS, you calculate. Then you check at which level of income aggregate demand equal to aggregate supply. You see, when income is rupees 300 crore, at that time aggregate demand equal to aggregate supply. Both are same. It means aggregate demand is planned expenditure. It is equal to planned production. But desired level of output. Aggregate supply is desired level of output. Planned production. Same. So equilibrium level of income is rupees 300 crore. Because at this level of income, aggregate demand equal to aggregate supply. Before that, you see, before that aggregate demand greater than aggregate supply, and after equilibrium level of income, you see when income level is 400 crores and 500 crores, then aggregate supply is more than aggregate demand. It means disequilibrium is there. So what is the equilibrium level of income or output or employment? It is rupees 300 crore. So how to obtain equilibrium level of income? Now when aggregate demand equal to aggregate supply. Clear? In the schedule, equilibrium level of income is rupees 300 crores. And at this level of income, aggregate demand is 300 crore and aggregate supply also 300 crore. Then same you see the diagram where aggregate demand curve intersect the aggregate supply curve. It is the equilibrium point. You see, we know that aggregate supply curve always make 45-degree angle with income axis by x-axis. Okay, it is passes through origin, and aggregate demand curve always initiate from positive portion of y-axis, because at zero level of income aggregate demand is positive one. So you see both the curves intersect at point E. E is the equilibrium point, and at this point aggregate demand equal to aggregate supply. And in the diagram, aggregate demand curve, equilibrium point is the point at it means how to obtain the equilibrium point. Now where aggregate demand curve intersect aggregate supply curve. So it is point E, and the corresponding level of equilibrium level of income is it is OY. In diagram it is OY, and in schedule it is rupees 100 crores. You see equilibrium level of income. Okay, so equilibrium point is E, and equilibrium level of income is what? OY. Clear? So in the schedule same thing I have written. Equilibrium level of output is rupees 300 crores, where aggregate demand equal to aggregate supply. In diagram equilibrium point is E, where planned spending on consumption and investment
It is aggregate demand. Aggregate demand is planned spending on consumption and investment exactly equals the desired level of output. So planned spending on consumption and investment means it's the consumption expenditure of the planned consumption expenditure of the household sector and planned investment expenditure of the farm sector exactly equals the desired level of output. Desired level of output means it is the planned production of the producers. Okay. Clear? Then next one you see, it is most important one. Suppose what changes take place in an economy when the economy is not in equilibrium? Already I told you, you see the schedule. You see the schedule. Before equilibrium level of income, aggregate demand is more than aggregate supply, and after equilibrium level of income, aggregate supply is more than aggregate demand. So what changes take place when the economy is not in equilibrium? Okay, here you see in the diagram, before equilibrium point E, you see aggregate demand curve is above aggregate supply curve, and beyond equilibrium point E, aggregate supply curve is above aggregate demand curve. Okay, उसको ही हम डिस्कस करेंगे. चेंजेस टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. सो वन कंडीशन इज एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. मैं थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ. प्लीज माय फ्रेंड्स ऑलवेज कमेंट मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी. सो उससे ही मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा, उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तब मैं अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगा. तो लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लाइक तो कर दो. ठीक है, अच्छा अच्छा टॉपिक में लाऊंगा. अभी हमारा केनीसियन थ्योरी चल रहा है. इट इज़ थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. एंड टुडे आई एम डिस्कसिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट. ओके, थ्रू ADS, and the next one I will discuss saving investment approach. Clear? And determination of income, you know that it is the most important part of macroeconomics. Okay, so aggregate demand greater than aggregate supply, it means जब planned expenditure planned production से ज़्यादा होगा. Here buyers means household sector and farm sector. Okay, so desired spending of the buyers, desired spending of the household sector and farm sector is more than the desired level of output already planned by the producers. So यहाँ पर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है. जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगा तो हमको याद रखना है, सभी प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, एक डिजायर, उनका एक डिजायर स्टॉक होता है, एक मिनिमम स्टॉक वो रखते हैं गोडाउन में, उसको वो नहीं बेचेंगे. सपोज फॉर एग्जाम्पल यू सी, सपोज सपोज एक फार्म ओनर हूँ. मेरा जो डिजायर स्टॉक है, मैं सभी समय 100 kg जो है मेरा डिजायर स्टॉक है. मैं चाहता हूँ कि मेरा गोडाउन में सभी समय 100 kg स्टॉक रहना है. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगा. ओके, जब बायर्स ज़्यादा डिमांड करेंगे तब प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे कि सपोज मेरा एग्जाम्पल में मैं क्या करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा जो डिजायर स्टॉक है मैं उससे निकाल कर बेचूंगा. सो सपोज मेरा डिजायर स्टॉक है 100 kg, अभी डिमांड सपोज मार्केट में ज़्यादा है, जितना सप्लाई है उससे डिमांड ज़्यादा है, तो इमीडिएटली तो प्रोडक्शन नहीं होगा. तो इमीडिएटली क्या करूंगा, मैं मेरा जो डिजायर स्टॉक है मैं उससे निकालूंगा. तो मेरा डिजायर स्टॉक कम्स बिलो द डिजायर्ड लेवल. तो मेरा जो स्टॉक होगा वो कम्स बिलो द डिजायर्ड लेवल. सपोज मैं अभी 60 kg निकाल दिया, मेरा जो डिजायर स्टॉक है 100 kg, मैं सभी समय चाहता हूँ कि 100 kg स्टॉक मेरा गोडाउन में रहेगा, मगर ज़्यादा डिमांड के वजह से मैं क्या किया ना, उससे 100 kg से 60 kg निकाल दिया. तो अभी मेरा स्टॉक कितना रहा, 40 kg. इट इज़ लेस दैन द डिजायर्ड लेवल, इट इज़ लेस दैन द डिजायर्ड लेवल. तब मैं अभी क्या करूँगा, मैं फिर प्रोडक्शन को बढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे फिर मेरा स्टॉक को किस लेवल पर लाना है ना, डिजायर लेवल पर लाना है, एक मिनिमम लेवल पर लाना है. तो मैं प्रोडक्शन को बढ़ाऊँगा. जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, तब
एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस, आउटपुट बढ़ेगा मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, देन इनकम लेवल बढ़ेगा। क्लियर? सो जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तब ऑटोमेटिकली क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ना, इट इज द डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट, इट इज द प्लांट प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, ये तब तक चलेगा जब तक एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से समान ना हो जाए, फिर हमारे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पोजीशन को आ जाएगा, उसी को हम डिस्कस करेंगे। सो व्हेन एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, it means the buyers, consumers and farms are planning to buy more goods and services, than what producers are planning to produce. So we know that when aggregate demand is greater than aggregate supply, then planned expenditure, because now we are discussing two sector model. Two sector means we have taken household sector and farm sector. So here expenditure means it is planned expenditure of the household sector and planned investment expenditure of the farm sector. So it means the buyers are planning to buy more than what producers are planning to produce. डिमांड ज़्यादा है, जो बायर्स का प्लानिंग है वो ज़्यादा खर्च करेंगे, तो जितना एक्चुअली सप्लाई है, ओके, जितना प्रोड्यूसर्स प्लानिंग किया है कि हम इतना गुड आउटपुट, इट मीन्स इतना गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उससे ज़्यादा डिमांड है, तब क्या होगा, मैं अभी बता चुका हूँ। In this situation, flow of goods and services in the economy tends to be less than their demand. Okay, flow of goods and services in the economy, it means supply of goods and services is less than the demand. Okay, जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, इन दिस सिचुएशन क्या होगा ना, जो इन्वेंटरी स्टॉक है, इन्वेंटरी स्टॉक मीन्स हियर इट इज स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, क्योंकि सभी प्रोड्यूसर्स वो एक डिजायर स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं उनका गोडाउन में। ओके, एक मिनिमम स्टॉक वो मेंटेन करना चाहते हैं, एक मिनिमम स्टॉक रहना चाहिए। तो इन दिस सिचुएशन इन्वेंटरी स्टॉक द स्टॉक ऑफ गुड्स स्टार्ट्स फॉलिंग, ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे ना, उनका जो डिजायर स्टॉक है उससे निकालेंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा डिमांड को मीट करने के लिए वो अभी क्या करेंगे ना, उनका जो डिजायर स्टॉक है उससे, उसी स्टॉक से वो गुड्स निकाल कर बेचेंगे। तो इन दिस सिचुएशन इन्वेंटरी स्टॉक स्टार्ट्स फॉलिंग एंड कम्स बिलो द डिजायर्ड लेवल, तो वो मिनिमम स्टॉक से कम हो जाएगा उनका स्टॉक। इन्वेंटरी स्टॉक इज लेस देन द डिजायर्ड लेवल, इन्वेंटरी स्टॉक कम्स बिलो द डिजायर्ड लेवल। तो यहाँ पर इन्वेंटरी स्टॉक इट इज द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, क्योंकि सभी प्रोड्यूसर्स वो चाहते हैं कि एक मिनिमम स्टॉक मेंटेन करेंगे, उसी को डिजायर स्टॉक कहा जाता है। अभी मैं वही किया, मेरा मिनिमम स्टॉक 100 kg रहना है, अभी ज़्यादा डिमांड होने से मेरा मिनिमम स्टॉक जो डिजायर स्टॉक 100 kg था, मैं उसे 60 kg निकाल दिया एक्सेस डिमांड को मीट करने के लिए। तो मेरा इन्वेंटरी स्टॉक क्या हुआ, 40 kg, एंड इट इज लेस देन द डिजायर लेवल, इट इज लेस देन द डिजायर्ड लेवल। तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरा मिनिमम स्टॉक बट डिजायर्ड स्टॉक को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ा दूंगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, और ऑटोमेटिकली वो तब तक चलेगा जब तक एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से समान ना हो जाए। तो वही है। तो टू ब्रिंग बैक द इन्वेंटरी स्टॉक टू द डिजायर्ड लेवल, प्रोड्यूसर्स एक्सपांड प्रोडक्शन। मैं अभी बोला, जब हमारा जो स्टॉक होगा वो डिजायर स्टॉक से कम हो जाएगा तो प्रोड्यूसर्स फिर प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। प्रोड्यूसर्स ऑटोमेटिकली दे इंक्रीज द प्रोडक्शन, बिकॉज इट मीन्स दे आर गोइंग टू मेंटेन द डिजायर स्टॉक, बिकॉज नाउ स्टॉक इज लेस देन द डिजायर्ड लेवल। एक्सेस डिमांड के वजह से हम हमारा क्या किया, जो मिनिमम स्टॉक था, जो डिजायर स्टॉक था, उससे निकल कर हम क्या किया, बेचा। So to bring back the inventory stock to the desired level, producers expand production. So production increases means employment level increases, output level increases, and also income level also increases. Output बढ़ जाएगा, output बढ़ेगा means employment बढ़ेगा और income level भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर production बढ़ने से क्या है ना, this trend is going on, क्योंकि यहाँ पर क्या था, aggregate demand aggregate supply से ज़्यादा था, अभी production बढ़ गया means aggregate supply बढ़ जाएगा। Okay. So in this situation aggregate demand greater than aggregate supply, but ultimately okay, when the inventory stock less than the desired level, then producers increase the production. So producers increase the production means aggregate supply increases, and this trend, okay, this trend is going on till aggregate demand equal to aggregate supply and economy again restoring back
टू द इक्विलिब्रियम लेवल, फिर इक्विलिब्रियम लेवल को आ गए। फिर वैसा ही जस्ट अल्टरनेट सिचुएशन, एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इस सिचुएशन में क्या होगा ना, प्लांट एक्सपेंडिचर इज लेस देन द प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट एक्सपेंडिचर ऑफ द बायर्स, the plant expenditure of the household sector and farm sector is less than the desired level of output, produced by the producers। यहां पर क्या हुआ ना, जो प्लांट एक्सपेंडिचर है वो प्लांट प्रोडक्शन से कम हो गया। जो प्लांट एक्सपेंडिचर है इट इज लेस देन द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गया। ऑल्टरनेटिवली उसको बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई मींस एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। अभी सप्लाई ज्यादा हो गया और डिमांड कम हो गया। मैं थोड़ा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तब प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, उनका तो ऑलरेडी डिजायर स्टॉक है। सपोज मैं, जैसे मेरा एग्जांपल था, मेरा एक फार्म है और मेरा जो डिजायर स्टॉक है वो 100 kg है। अभी क्या हुआ मार्केट में ना, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो प्लान किए हैं हाउस होल्ड सेक्टर, फार्म सेक्टर, उनका जो डिजायर एक्सपेंडिचर है वो कम है, मगर किससे कम है ना, डिजायर प्रोडक्शन से कम है। तो इससे पता चलता है इट मीन्स डिमांड इज लेस देन सप्लाई। अभी सप्लाई ज़्यादा हो गया, एक्सेस सप्लाई होने से प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे ना, जो गुड्स मार्केट में बेचा नहीं गया उसको लाकर फिर स्टॉक करेंगे। अभी वही हालत हुआ, जैसे मेरा तो डिजायर स्टॉक है 100 kg, अभी 60 kg बेचा नहीं गया, ओके, ड्यू टू लेस डिमांड। डिमांड कम होने से 60 kg नहीं बेच पाया, वो 60 kg को ऐड कर दिया, क्योंकि मेरा मिनिमम डिजायर स्टॉक 100 kg है, उसमें 60 kg फिर ऐड हो गया, वो 160 kg हो गया। अनवांटेड स्टॉक बढ़ गया। अनवांटेड स्टॉक क्या है, 60 kg, जो बेचा नहीं गया मार्केट में। मेरा जो डिजायर स्टॉक है वो 100 kg है, जो 60 kg बेचा नहीं गया मैं उसको लाकर फिर स्टॉक में ऐड कर दिया, और जो स्टॉक में ऐड किया उसी एडेड क्वांटिटी को मैं अनवांटेड स्टॉक बोलूंगा, क्योंकि मेरा तो डिजायर स्टॉक ऑलरेडी 100 kg है, और जो 60 kg बेचा नहीं गया उसको भी ऐड कर दिया। तो जब अनवांटेड स्टॉक आ जाएगा तब अनवांटेड स्टॉक को हटाने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे ना, प्रोडक्शन को कम कर देंगे। दे रिड्यूस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को कम करने से क्या होगा, लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाएगा, ओके। एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो डिक्रीजेस, लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो डिक्रीजेस। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इज प्लांट लेवल ऑफ आउटपुट, इट इज प्लांट प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन कम होगा एग्रीगेट सप्लाई कम होगा। अभी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा था तो एग्रीगेट सप्लाई कम हुआ। तो ये तब तक चलेगा जब तक एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से समान ना हो जाए। तो वही है, देखिए, इट मीन्स द बायर्स, कंज्यूमर्स एंड फार्म्स आर कंज्यूमिंग एंड स्पेंडिंग लेस देन व्हाट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूसर्स प्लानिंग किया है उससे कम है, प्लांट एक्सपेंडिचर ऑफ द बायर्स कम है, तो इट मीन्स सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। सो इन दिस सिचुएशन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू एक्सीड देयर डिमांड। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स गुड्स ऑफर फॉर सेल बाय सप्लाई एक्सीड्स डिमांड। जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दिस विल लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटोरीज बाय स्टॉक ऑफ गुड्स विद द प्रोड्यूसर्स। ऑटोमेटिकली जो बेचा नहीं जाएगा, जो अनसोल्ड गुड्स होगा, उसको भी प्रोड्यूसर्स उसको लाकर स्टॉक करेगा, और वो मिनिमम स्टॉक से ज्यादा हो जाएगा। जो मिनिमम स्टॉक से जितना ज्यादा होगा उसको हम अनवांटेड स्टॉक बोलेंगे। दिस विल लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटोरीज विद द प्रोड्यूसर्स। तो अनवांटेड स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो डिजायर स्टॉक है उससे ज्यादा हो गया। तो डिजायर स्टॉक से जितना ज्यादा हुआ उसको हम अनवांटेड स्टॉक बोलेंगे। तो अनवांटेड स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीजेस। अभी जब अनवांटेड स्टॉक्स बढ़ गया तो टू क्लियर द अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए, हटाने के लिए वो क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन को कम कर देंगे। टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक प्रोड्यूसर शुड प्लान ए कट इन प्रोडक्शन। वो प्लान करेंगे, अभी प्रोडक्शन को कम करेंगे। दिस रिड्यूसेस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इंटर्न इनकम लेवल, ओके। जब प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होगा, एग्रीगेट सप्लाई भी कम होगा। सो कॉन्सिक्वेंटली एग्रीगेट सप्लाई वुड रिड्यूस, एंड ऐसे एग्रीगेट सप्लाई, दिस ट्रेंड इज गोइंग अनटिल एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा था। अभी जब प्रोड्यूसर्स ने अनवांटेड स्टॉक को हटाने के लिए जब प्रोडक्शन को कम कर दिया, एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो गया।
Clear? So this trend is going on till aggregate demand equal to aggregate supply, and again economy regain or restoring back to the equilibrium position. ओके ये फर्स्ट अप्रोच है, ये DAS अप्रोच है. सेकेंड अप्रोच है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू S&I अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन. ये जो अप्रोच में अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच equilibrium level of income or output or employment is determined when planned saving is equal to planned investment. तो planned saving planned investment के साथ समान होगा. planned saving, intended saving और एक ex ante saving. Actually economics ex ante, in macro clearly ex ante savings, it is planned saving or intended saving, okay, of the household sector during an accounting year. Or similarly ex ante investment, planned investment, intended investment, desired investment, or okay, it is ex ante investment. Ex ante investment, it is planned investment, it is planned investment of the farm sector during an accounting year. So ये जो अप्रोच है इसमें क्या होगा ना, प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से समान होगा. जब प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से समान होगा तब हमको इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा. तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. सेम थिंग मैं वही लिख दिया, एस इज इक्वल टू आई. एस इज प्लान्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. सो यहाँ पर अजम्पशंस जिसके हिसाब से मैं टेबल अभी एक शेड्यूल बनाऊंगा. सो अजम्पशंस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो रुपीज 100 crores. And you see the equation of the consumption function, it is 50 plus 0.5y. Same यहाँ पर small a, it is autonomous consumption expenditure. Autonomous consumption expenditure, it is consumption expenditure at zero level of income. And MPC is 0.5. Again, it is 50% of additional income used for consumption. Additional income का 50% हम consume करेंगे. 50% of increase in income used for consumption. उसके हिसाब से हम शेड्यूल बनाएंगे. देखिए शेड्यूल. ओके, इनकम इंक्रीज कर रहा है 100 crores, कंजप्शन इंक्रीज कर रहा है 50 crores. क्योंकि उसी additional always additional income always increase in income is 100 crores and increase in consumption is 50 crores. So delta y is equal to rupees 100 crores, delta c is equal to rupees 50 crores. So automatically what is MPC is 0.5 delta c by delta y. It means always additional consumption is 50% of what, additional income. उसी इक्वेशन में वही दिया है 0.5 MPC. ओके, तो देन कैलकुलेट एस एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट. तो यहाँ पर देख लो जे एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ income or output or employment? It is also again it is rupees 300 crores equilibrium level of income, because at this level of income planned saving is equal to planned investment. You see, planned saving is 100 crores and planned investment is also rupees 100 crores. Okay, before equilibrium level of income it is investment is greater than saving, and after equilibrium level of income it is saving greater than investment. So in the schedule you see always autonomous investment curve, it is horizontal one and parallel to x-axis. For what reason the shape of the autonomous investment curve is horizontal one? Because at any level of income autonomous investment remains same. At any level of income, you see, at any level of income autonomous investment is same. For this reason autonomous investment curve is horizontal one and parallel to x-axis. Okay, autonomous investment curve initiate from positive portion of y-axis, because at zero level of income also autonomous investment remains same. You see, autonomous investment is 100 crore at zero level, at any level of income autonomous investment remains same. Then just to draw the saving curve, both the curves intersect each other at point E. So E is the equilibrium point where planned saving is equal to planned investment, and the corresponding equilibrium level of income is OY. So in diagram, equilibrium level of income output employment is OY, means in schedule it is rupees 300 crores. Okay, the same thing I have written. You see, in the schedule equilibrium level of income is rupees 300 crores, where planned saving is equal to planned investment, it is equal to rupees 100 crores. In diagram, equilibrium point is E and corresponding equilibrium level of income is OY. Already मैं डिस्कस कर चुका.
देन हम चेंजेस देखेंगे. चेंजेस क्या है? Just before you see before equilibrium point, investment is greater than saving, and after equilibrium point, saving is greater than investment. Same thing in schedule you see. Before equilibrium level of income, investment is greater than saving, and after equilibrium level of income, saving is greater than investment. Okay, so changes take place when economy is not in equilibrium. When the economy is not in equilibrium, now when investment is greater than saving and saving is greater than investment. First हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग. इट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू एक्सेस सप्लाई. सेम थिंग है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन सेविंग. ये कंडीशन में एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन सेविंग, सो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगा. सेम थिंग इट, ये सेम थिंग है. इट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू एक्सेस सप्लाई. तो वही चीज को आपको लिखना है जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी. ओके, इन प्रेसिडिंग इक्विलिब्रियम केस. ओके, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड when aggregate demand greater than aggregate supply. So it refers to excess of aggregate demand in relation to supply. It means the buyer means here farm sector. It is, you consider the investment expenditure of the farm sector, planned investment expenditure of the farm sector. It means the farm sector is planning to buy more goods and services than what producers are planning to produce. Clear? तो सेम थिंग अदर जो चीज मैं पहले बोल चुका हूं उसी चीज को आपको लिखना है. इन सिचुएशन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू बी लेस देन देयर डिमांड. यस, वही चीज है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. तो आपको याद रखना है व्हेन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग, इट मींस planned investment expenditure is greater than planned production. Okay, it refers to excess of aggregate demand in relation to excess supply. Clear? In this situation, flow of goods and services in the economy tends to be less than their demand. Same. In this situation, inventory stock of goods starts falling and comes below the desired level. To bring back the inventory stock to the desired level, producers expand production. This raises the level of employment output and level of income. है ना? यहाँ पर क्या करना है, जब लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, when the level of income increases. अच्छा, सेविंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेवल ऑफ इनकम. ऑलवेज सेविंग इज डिपेंड अपॉन इनकम. व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस, यू नो दैट यहाँ पर जब प्रोड्यूसर्स एक्सपांड प्रोडक्शन देन ऑटोमेटिकली लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस and also income level increases. So when level of income increases, then saving also increases. Okay, this trend is going on till saving is equal to investment. क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा था. अभी क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने से इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग, और प्रोडक्शन बढ़ने से इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ने से सेविंग बढ़ा. तो दिस ट्रेंड इज गोइंग ऑन टिल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट से समान हो जाएगा क्योंकि इनकम बढ़ने से सेविंग बढ़ेगा. क्लियर? अदरवाइज सेम चीज है, जो एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई था वही चीज को हम लिखेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग. ओके, इट मीन्स द बायर, द फार्म सेक्टर इज कंज्यूमिंग लेस. ओके, इट मीन्स द बायर इज कंज्यूमिंग लेस एंड सेविंग मोर. ओके, इन्वेस्टमेंट जो बायर है, जो फार्म सेक्टर है, वो ज़्यादा खर्च करेगा और कम सेव करेगा. तो इट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई ओवर एग्रीगेट डिमांड. जब उसका कंजप्शन कम हो जाएगा मगर सेविंग ज़्यादा होगा, सेविंग को ज़्यादा करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाएगा. जब भी सभी फार्म सेक्टर का कंजप्शन कम हो जाएगा और सेविंग ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड. तभी हम डिस्कस कर चुके हैं व्हेन एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड क्या होगा. इस समय क्या होगा, जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा ना, इन्वेंटरी स्टॉक इज मोर देन द डिजायर्ड लेवल, अनवांटेड स्टॉक इज अराइज्ड. टू क्लियर द अनवांटेड स्टॉक, ओके सेम चीज, टू क्लियर द अनवांटेड स्टॉक प्रोड्यूसर्स रिड्यूस द प्रोडक्शन. जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तब लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, इनकम लेवल कम हो जाएगा. इनकम जब कम हो जाएगा तब सेविंग भी कम हो जाएगा. ओके, यहाँ पर क्या था ना, सेविंग ज्यादा था, इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग, बट सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट. तो अभी क्या हुआ, इस समय क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होने से इनकम कम हो गया, इनकम कम होने से सेविंग कम हो गया.
This trend is going on till saving is equal to investment and economy restoring back to the equilibrium level. ओके, ये दोनों अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम. ओके, इट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है. तो हम अभी अब जाएंगे एक्स-एंटे सेविंग्स. ये प्लान्ड सेविंग्स, मैं बार बार बोला एक्स-एंटे सेविंग्स, इट इज प्लान्ड saving of the household sector during an accounting year. Same thing I have written. It refers to the desired, intended, planned. It refers to desired or intended or planned saving during the period of 1 year. Alternatively, I have written, the one more question is coming, what is ex-ante savings? Right, it is the desired or planned or intended saving during an accounting year. Alternatively, it refers to amount of savings which the households plans to save at different levels of income in an economy. Common चीज़ है, डिफरेंट बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर में डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में वो प्लान करेंगे कि हम इतना इतना सेव करेंगे, जब इतना इतना इनकम होगा तब हम इतना इतना सेव करेंगे, वो प्लान करेंगे. नहीं, इनकम का हम 60% सेव करेंगे. ओके, तो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम देयर प्लान सेविंग इज डिफरेंट वन. सो it means alternatively, ये भी just also you write down, alternatively it refers to amount of savings which the households plans to save at different levels of income in an economy. ये जो सेविंग फंक्शन था, सेविंग फंक्शन में क्या था, सेविंग इनकम, ये कितना इनकम में कितना सेव होगा. तो भाई ओके, हमारा तो वो हाउस होल्ड सेक्टर प्लान करेगा कि हमारा जब ये इनकम होगा हम उतना इतना सेव करेंगे. ओके, सो इट इज अमाउंट ऑफ सेविंग्स which the households plans to save at different levels of income. Otherwise, very common one, it is desired, planned or intended savings of the household sector during an accounting year. Similarly, ex-ante investment, ये क्या है ना, फार्म सेक्टर को जाएंगे हम. planned desired or planned desired or intended investment of the farm sector during an accounting year, वो भी प्लान करते हैं कि उनका प्लान इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कि डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कि इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट क्या होगा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ऑल्टरनेटिवली वो क्या करेंगे ना, इट रिफर्स टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फार्म्स प्लान्स टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. वो भी प्लान करते हैं कि हमारा जब इतना इनकम होगा हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, वो प्लान करेंगे ये इनकम लेवल में हम इतना इन्वेस्ट करेंगे. ओके, क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट. तो अल्टरनेटिवली इट रिफर्स टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फार्म्स प्लान्स टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. तो जो एक्स-एंटे इन्वेस्टमेंट इट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो फार्म सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा. बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम दे बोरो फंड्स from the banks and invest it on capital goods. Okay, so here the planned investment is determined by the relationship between investment demand and rate of interest. कब वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या डिमांड करेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा उनका जो इट मीन्स दे बोरो लेस फंड्स. ओके, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर, व्हेन रेट ऑफ बोरोइंग इज मोर, देन प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स बोरो लेस फंड्स and invest less funds on capital goods and vice versa. Okay, तो उनका जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो आपको एक बढ़िया चीज याद रखना है, ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, बा एक्स-एंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स-एंटे इन्वेस्टमेंट. ओके, ऑलवेज एक्स-एंटे सेविंग एंड एक्स-एंटे इन्वेस्टमेंट आर नॉट इक्वल. सभी समय प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट के साथ समान नहीं होगा, ओनली इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में. वही चीज में लिख दिया, एक्स-एंटे सेविंग एंड एक्स-एंटे इन्वेस्टमेंट आर इक्वल ओनली एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. बोथ आर नॉट ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. और नेक्स्ट वन, एक्सपोस्ट सेविंग. एक्सपोस्ट सेविंग मीन्स एक्चुअल सेविंग. एक्चुअल मीन्स प्लान्ड अनप्लान्ड. इट इज द सम ऑफ द प्लान्ड सेविंग एंड अनप्लान्ड सेविंग. प्लान्ड सेविंग को हम क्या बोला, एक्स-एंटे सेविंग. So it refers to the actual or realized saving in an economy during a year. Actual or realized saving in an economy. It is the sum total of planned and unplanned saving. Similarly, ex-post investment, it is the actual investment. Actual or realized investment in an economy. Yeah, actual investment. Actual investment क्या होगा ना, it is the sum of the
प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। और आपको याद रखना है एट एनी लेवल ऑफ इनकम, कोई भी इनकम लेवल में एक्सपोस्ट सेविंग इज इक्वल टू एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल सेविंग इक्वल टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ये दोनों कोई भी लेवल ऑफ इनकम में समान होंगे, मगर जो एक्स-एंटी सेविंग व प्लान्ड सेविंग and ex-ante investment or planned investment both are equal only at equilibrium level. Always both are not equal, only at equilibrium level. But in case of actual saving, ex-post saving, okay, actual investment, ex-post investment, तो both are equal at any level of income, आपको याद रखना है। देन फिर हम जाएंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Investment means it refers to the expenditure incurred on creation of new capital assets. Okay, investment means it is expenditure incurred on capital assets which are adding to the existing capital stock. जो ये अकाउंटिंग ईयर में हम कितना नया असेट्स के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स वो क्या करेंगे इसी अकाउंटिंग ईयर में कितना नया असेट्स के ऊपर खर्च करेंगे। जो एग्जिस्टिंग असेट है उसको छोड़ दो, इसी जो अकाउंटिंग ईयर में सपोज 2 मशीन खरीदा, 2 नया मशीन खरीदा, 2-3 नया रूम बनाया गया और कुछ एडिशनल रॉ मटेरियल्स को खरीदा गया, उसके ऊपर जो खर्च होगा उसी को ही इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। इट इज एडिशन और क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल असेट्स। सभी कैपिटल असेट्स को नहीं लेंगे, जो इसी अकाउंटिंग ईयर में जो नया असेट्स, जो नया रूम्स बनाया गया, जो न्यू असेट्स को खरीदा गया, जो एडिशनल रॉ मटेरियल्स को खरीदा गया, उसके ऊपर जो खर्च को हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इट रिफर्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडिशनल कैपिटल गुड्स which are added to the existing capital stock. But it means expenditure incurred on creation of assets, creation of new capital assets. सपोज एक प्रोड्यूसर एंड इन्वेस्टर वो क्या किया, 2 नया मशीन खरीदा इसी अकाउंटिंग ईयर में, 2 नया मशीन खरीदा, 3 नया रूम बनाया, ओके, 100 kg ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदा, तो उसी के ऊपर जो खर्च किया, जो 2 नया मशीन के ऊपर जो खर्च किया, जो नया 3 रूम बनाया उसके ऊपर जो खर्च हुआ, जो एडिशनल 100 kg रॉ मटेरियल्स खरीदा गया उसके ऊपर जो खर्च को हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, और उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है, पूंजी निर्माण। क्लियर? सो इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन assets like machinery, building, equipment, raw materials etc. So इसके वजह से क्या है, जो हम एडिशनल assets के ऊपर हम जो प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स खर्च करेंगे उसमें क्या होगा ना, इट इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन एन इकोनॉमी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। उसमें इकोनॉमी में क्या होगा ना, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी। ज़्यादा गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा जब हम एडिशनल कैपिटल असेट्स को, हम एडिशनल कैपिटल असेट्स के ऊपर जब इन्वेस्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ओके खर्च करेंगे, तब क्या होगा ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा। वही है प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। सो 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो जस्ट टू रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडिशन और क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल असेट्स। इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन capital goods which are added to the existing capital asset. Clear? Addition, expenditure incurred on addition or creation of new capital assets. जितना नया capital assets के ऊपर इसी accounting year में खर्च होगा, during an accounting year, how many additional capital assets purchased by the investors and producers, and how much money they incurred expenditure on additional capital assets, चाहे फिक्स्ड हो मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स, और अदर साइड में इन्वेंटरी स्टॉक में क्या होता है, एडिशनल रॉ मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रूम्स, उसके ऊपर जो खर्च होगा उसी को हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, और उसका अल्टरनेट नेम है कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट में ऑटोनोमस, स्वायत्त निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, the investment which is not affected by changes in the level of income and not induced by profit motive. ये इनकम लेवल में जब चेंज आएगा कि जो प्रॉफिट में कोई सपोज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में कुछ चेंज आएगा, मगर ये इन्वेस्टमेंट प्रभावित नहीं होगा। दिस इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट, मैं बार बार बोल चुका हूँ। इट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय
changes in the level of income and not induced by profit motive. At any level of income, this investment remains same. ये कभी भी इनकम से और प्रॉफिट से प्रभावित नहीं होगा, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम. जब इनकम बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट वही है, जब इनकम कम होगा इन्वेस्टमेंट वही है. क्लियर. और नॉट ऑल्सो इंड्यूस्ड बाय प्रॉफिट मोटिव. बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट है, दिस इन्वेस्टमेंट जनरली मेड बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट पहले से प्लान कर देता है. बिकॉज एवरी ईयर एट द इनिशियल ऑफ द एवरी ईयर इट मीन्स government declare the union budget, and in budget already government fixed what would be the expenditure on different areas, what would be the expenditure on education, what would be the expenditure on health, what would be the expenditure on defense, what would be the expenditure to strengthen infrastructure, what would be the expenditure to strengthen rural development. ये सब गवर्नमेंट फिक्स कर चुका है ऑलरेडी. वही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. तो चाहे वो इनकम आगे में क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, कोई ये नहीं. ओके, जनरली दिस इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स मोर नंबर ऑफ डैम्स, मोर पावर प्लांट्स, मोर रोड्स, मोर ब्रिजेस, मोर फ्लाईओवर्स, मोर स्कूल बिल्डिंग्स, मोर हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, ओके, मोर रेलवे लाइन्स. ओके, so the investment generally made by the government on infrastructural activities. It depends upon the fiscal policy. Fiscal policy is revenue and expenditure policy of the government. रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी होता है. गवर्नमेंट बजट में डिक्लेयर करता है ना, इतना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ और इतना खर्च होगा. तो इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. देन दिस इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री. ये भी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस पूरे. सपोज पॉलिटिकल कंडीशंस, हमारा जो पॉलिटिकल सिचुएशन वो स्टेबल है, गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट इट मीन्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज देयर विद द गवर्नमेंट. So now it means BJP government has absolute majority. So in this case ये stable government है. उस समय क्या होगा, each and every time it means autonomous investment definitely would be more, ज़्यादा होगा, because the government want to strengthen infrastructural facilities. Okay, basically government want to strengthen infrastructural facilities और ज़्यादा होगा, autonomous investment ज़्यादा होगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री. पॉलिटिकल कंडीशंस मीन्स बेसिकली हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस वो स्टेबल है ना अनस्टेबल है. अभी जैसे स्टेबल है क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है. अभी अप टू 2024 गवर्नमेंट आराम से चलेगा. और यही स्टेबल गवर्नमेंट के पास क्या होता है ना, गवर्नमेंट सोचता है नहीं नहीं हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा डैम बनाएंगे, ज़्यादा रेलवे लाइन्स बनाएंगे, ज़्यादा मेट्रो स्टेशन बनाएंगे, स्कूल बिल्डिंग्स बनाएंगे, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स बनाएंगे, ज़्यादा फ्लाईओवर्स बनाएंगे, ज़्यादा ब्रिजेस बनाएंगे. ओके, it depends upon socio-economic and political conditions of the country. Diagram, it is autonomous investment curve is always horizontal one, the shape of the investment curve. In case of what, autonomous investment, it is horizontal one and parallel to x-axis, because at any level of income, okay, the autonomous investment remains same, because this investment is not influenced by level of income and profit. At any level of income, at zero level of income also, see, at zero level of income also autonomous investment also positive one. Previous case already I told, previous tables you see, if you go through the previous tables, previous schedules, you can detect at any level of income autonomous investment remains same. Autonomous investment curve initiate from positive portion of y-axis, because at zero level of income also autonomous investment is positive one. Clear. Its curve is parallel to x-axis as it is income inelastic. Income inelastic means इनकम में चेंज हो रहा है मगर ये इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है. ओके, देयर इज नो चेंज इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम. देयर इज नो चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम. तो इसलिए इसको इनकम इनइलास्टिक कहा जाता है. सेकेंड वन, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में होता है. क्या है, जब इनकम बढ़ जाएगा, जब प्रोड्यूसर्स एंड बेसिकली इन्वेस्टर्स का इनकम बढ़ जाएगा, वो फिर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे. जब उनका इनकम लेवल बढ़ जाएगा वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे. कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका प्रॉफिट लेवल बढ़ेगा तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे. एक्सपेक्ट करेंगे, वो प्रेडिक्ट करेंगे आगे में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो अभी वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे. क्लियर. तो दिस इन्वेस्टमेंट एक्चुअली द इन्वेस्टमेंट विच इज इट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ इनकम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. क्लियर. ये इन्वेस्टमेंट क्या होगा ना, इनकम लेवल से प्रभावित होगा. मैं बोल चुका हूँ, एक जब प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स वही सोचेंगे कि हमारा इनकम बढ़ रहा है, तो इनकम बढ़ रहा है मीन्स वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे. और दे एक्सपेक्ट दैट, दे प्रेडिक्ट दैट
दे विल रिसीव मोर प्रॉफिट। वो यही सोच रहे हैं कि अभी हम हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा आगे में, तो अभी हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे क्योंकि हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। सो दिस इन्वेस्टमेंट बेसिकली, दिस इन्वेस्टमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड एंड अफेक्टेड बाय level of income and expected profitability. So same thing I have written. It is generally this investment done by the private sector, and in this case you see investment curve is sloping upward from left to right. Reason is, for what reason induced investment curve is sloping upward from left to right? Because when income increases, then investment also increases. You see, when income is OY, then induced investment is OM. Then when income increased to OY1, then investment increased to OM1. So there is positive relationship between income and investment. There is direct relationship between income and investment. And income जब कम होगा, investment कम होगा. Okay, income जब बढ़ जाएगा, investment बढ़ेगा. For this reason, just to remember, induced investment curve is sloping upward from left to right. The investment depends on government policy. So just to remember, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? द इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ये सब चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छा होना चाहिए, ये कि इनोवेशंस की, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट्स कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इनकम इलास्टिक वन। ये दो प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड। एंड इन प्रीवियस शेड्यूल्स में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ले चुका हूँ। द इन्वेस्टमेंट एट एनी लेवल ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम। सो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ। द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इट रिफर्स द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट, बट इन केस ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इट मीन्स द इन्वेस्टमेंट विच इज influenced and affected by level of income and expected profitability. Then determinants of investment बहुत important है। investment which factors actually affecting investment, it is very important one. So according to Keynes, actually the decision to invest depends in a new project depends upon two factors. Always investment depends upon two factors. One is marginal efficiency of investment, another one is rate of interest. MEI, marginal efficiency of investment, another rate. So both the factors determine investment. So first one you see, marginal efficiency of investment, it is defined as expected rate of return of an additional unit of capital investment. एक एडिशनल यूनिट, हम एक सपोज एक नया मशीन के ऊपर हम इन्वेस्ट किया, वो नया मशीन से हमको कितना रिटर्न मिलेगा, वो नया मशीन हमको कितना रिटर्न देगा, उसी को हम MEI बोलेंगे। इट इज डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। रेट परसेंटेज के हिसाब से हम देखेंगे कि जो हम एक एडिशनल एसेट लिया, एक एडिशनल मशीन लिया, वो एडिशनल मशीन को हम यूज करेंगे तो हमको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। उसका एग्जाम्पल में इन सब्सिक्वेंट टाइम आई विल डिस्कस वन एग्जाम्पल। सो इट इज डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड, इट इज द डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। एक एडिशनल यूनिट के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको वो कितना रिटर्न देगा। तो बेसिकली MEI इज डिटरमाइंड बाय अगेन बाय टू फैक्टर्स। वन इज सप्लाई प्राइस, अनदर वन इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस बहुत ईजी है। सप्लाई प्राइस क्या है ना, इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट्स, जो एडिशनल कैपिटल एसेट, जो नया मशीन हम खरीदेंगे उसका प्राइस क्या है। इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू कैपिटल एसेट। जो न्यू कैपिटल एसेट की जो नया मशीन हम खरीदा, जो नया मशीन प्रोड्यूसर खरीदा, जो नया मशीन इन्वेस्टर खरीदा, उसके ऊपर जो पैसा खर्च हुआ उसी को सप्लाई प्राइस कहा जाएगा। इफ ए मशीन ऑफ ₹20,000 इज रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ एन ओल्ड मशीन, एक ओल्ड मशीन था, उसका लाइफ स्पान खत्म हो गया, उसके बाद एक नया मशीन खरीदा गया। कितने में खरीदा गया ना, ₹20,000। हाँ, ₹20,000 में। इफ ए मशीन of ₹20,000 is replaced in place of an old machine, then ₹20,000 is the supply price. एक old machine को हम just old machine thrown away by the investor, and in place of it the investor purchase a new machine and whose cost price is ₹20,000. This ₹20,000 is the supply price. फिर prospective yield क्या है ना, it refers to net return expected from the capital asset over its lifetime. जो capital asset, जो नया मशीन को अभी, जो मेरा एग्जाम्पल में ₹20,000 में खरीदा गया, उसको खरीदने के बाद उससे हमको कितना रिटर्न मिलेगा, वो कितना रिटर्न देगा। प्रोस्पेक्टिव यील्ड, इट रिफर्स टू द नेट रिटर्न
एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल असेट ओवर इट्स लाइफ टाइम। एक एग्जांपल दे दो, इफ द गिवन कैपिटल asset is expected to yield receipts of rupees 2200। सपोज हमको वो क्या दिया, जो नया मशीन खरीदा गया रुपीज 20,000 में, उसको हम यूज करके हमको वो रिटर्न दिया रुपीज 2200। ओके, इट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। हम एक्सपेक्ट यही किया, आशा किया कि हमको वो कितना दे रहा है रिटर्न ना 2200। इफ द गिवन कैपिटल असेट, यू सी गिवन कैपिटल असेट मींस मशीन, जो मशीन को रुपीज 20,000 में खरीदा गया, जिसका सप्लाई प्राइस रुपीज 20,000 है। जो मशीन क्या किया ना, ओल्ड मशीन को रिप्लेस किया। तो इसमें प्रोड्यूसर कितना एक्सपेक्ट किया कि इफ द गिवन कैपिटल असेट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड रिसिप्ट्स ऑफ रुपीज 2200, तो एक्सपेक्ट किया गया कि वो उससे हमको कितना रिटर्न मिलेगा 2200। तो रनिंग एक्सपेंसेस है वो 200 है। कभी कभी क्या है, रिपेयर में खर्च होता है, रुपीज 200 है। तो हमको प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना हुआ, रुपीज 2000। प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज व्हाट ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रनिंग एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंसेस क्या है, रिपेयर सपोज एनी टाइप ऑफ डिफेक्ट इज अराइजिंग, देन इमीडिएटली इट मस्ट बी रेक्टिफाइड, एंड हाउ मच मनी actually expense on it, actually it is running expenses, it is rupees 2000 here prospective yield। so basically it refers to the net return, इसलिए prospective yield net return means return से हम क्या करेंगे ना, running expenses को माइनस कर देंगे। it refers to the net return, it is expected from the capital asset over its lifetime। पूरा लाइफ टाइम उसका लाइफ टाइम होगा, तो सपोज 10 ईयर्स होगा, हमको वो कितना रिटर्न देगा, वो कैपिटल असेट। जो नया मशीन के ऊपर हमारा जो एग्जांपल है, जो नया मशीन के ऊपर हम 20,000 रुपीज़ खर्च किया, जिसका सप्लाई प्राइस रुपीज़ 20,000 है, और अभी वो इन्वेस्टर, वो प्रोड्यूसर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ना, वो 2,200 रुपीज़ देगा, मगर उससे 200 रुपीज़ क्या होगा, रनिंग एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो हमारा नेट रिटर्न प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर को कितना मिला ना, 2000। वही 2000 प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, इसलिए इट रिफर्स टू द नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल असेट ओवर इट्स लाइफ टाइम। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, एमईआई में यहाँ पर जो एमईआई को बोला, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मगर जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है ये ओनली रिटर्न है, इट रिफर्स टू द नेट रिटर्न। मगर एमईआई क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन एडिशनल कैपिटल असेट, ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। इट इज द नेट, एमईआई इज डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, मैंने एक्सपेक्ट मीन्स हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे कि कितना हमको रिटर्न देगा। तो हमको एमईआई को निकालने के लिए दो चीज चाहिए, सप्लाई प्राइस, एक प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस जो नया मशीन को खरीदा गया उसका प्राइस क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसको कितना पैसा में खरीदा गया। और प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है, या उसको यूज करेंगे तो वो हमको कितना नेट रिटर्न देगा। नेट रिटर्न मीन्स रिटर्न से आप रनिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, फिर हम एमईआई जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, एमईआई इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल असेट। जो नया मशीन से हमको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला, तो इसका फॉर्मूला क्या है ना, प्रोस्पेक्टिव यील्ड इंटू 100 बाय सप्लाई प्राइस। हमारे एग्जांपल में प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना है, जो नेट रिटर्न कितना है 2000 इंटू 100 बाय सप्लाई प्राइस क्या है, इट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, तो 10%। तो जो एमईआई है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, वो 10% है। समझ में आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकंड चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, नॉट व्हाट रेट द बैंक्स प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स। कौन सा रेट में जो बैंक्स है वो क्रेडिट देते हैं प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स को। ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स जब जो प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स बोरो करेंगे वो कौन सा रेट से बोरो करेंगे। इट रिफर्स द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बोरो करके वो इन्वेस्ट करते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे अभी एमईआई एंड आरओआई। एमईआई है इट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और आरओआई इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। जब एमईआई आरओआई से ज्यादा होगा, जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। हमको ये पता, इन्वेस्टर को पता चला कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज 10% है, मगर हमको रिटर्न एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो कितना मिल रहा है ना, 15% मिल रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न 15% है। ओके, जो मशीन को खरीदा गया, हम क्या किया,
ना, सपोज बैंक से बोरो करके प्रोड्यूसर क्या किया, बैंक से बोरो किया, कौन सा रेट में, 10% में, और मशीन को खरीदा गया, और मशीन से कितना रिटर्न मिला ना, 15%। तो इसी समय क्या होगा ना, जस्ट ये इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा। और जब MEI, जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, तब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। जब दोनों समान होगा, MEI एंड ROI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज़ को कंपैरिजन में आपको याद रखना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिया भाई, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ADAS अप्रोच, और ऑल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होगा, जो डिसइक्विलिब्रियम, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। Then next one, explain the equilibrium level of national income using saving investment approach. Also explain if saving is greater than investment. So ये कुछ क्वेश्चंस दे दिया, गिवन कंजप्शन कर्व, डिराइव सेविंग कर्व एंड स्टेट द स्टेप्स टेकन इन द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन, यूज डायग्राम। डिराइव द 2 अल्टरनेटिव कंडीशंस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिराइव 2 अल्टरनेटिव कंडीशंस ऑफ एक्सप्रेसिंग नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। सो दीज इक्विलिब्रियम कंडीशंस इन सिंगल डायग्राम, 2 अल्टरनेटिव कंडीशंस, दोनों ADAS अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो दोनों का डायग्राम क्या है, आप अपर पार्ट में ADAS अप्रोच में इक्विलिब्रियम दिखा दो, और नीचे में क्या करो, SI सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इनकम दिखा दो, वो सेम होगा। आप टेबल देखिए, प्रीवियस टेबल देखिए, एक कॉमन टेबल देखिए, जो ADAS अप्रोच में एक टेबल देखिए, वहां पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में देखिए, वहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के साथ प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो दोनों अल्टरनेटिव अप्रोच, 2 अप्रोचेस है, हम जानते हैं, 2 अल्टरनेटिव कंडीशंस, वन AD इज इक्वल टू S, अनदर वन प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट। दोनों कंडीशंस में हमको इक्विलिब्रियम इनकम प्राप्त होता है। ओके, इक्विलिब्रियम इनकम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट। तो ऊपर में आप देखा तो वही सेम इनकम में, आप देखिए प्रीवियस टेबल, तो इसका आपको एग्जांपल लेना है तो ADAS अप्रोच का जो टेबल है उसको देखो, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम देखो, वहां पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा और वहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। तो उसी के हिसाब से डायग्राम करना है। क्लियर? सब क्वेश्चंस दे दिया। व्हेन इज एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस। ऑल्सो एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, यूज डायग्राम। एक्सप्लेन ऑल द चेंजेस दैट विल टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और एक थोड़ा बता देता हूं, इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड व्हेन डिमांड बिकम्स इफेक्टिव वन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड, कब हमारा डिमांड इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव डिमांड, इट मीन्स डिमांड इज इफेक्टिव वन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से समान होगा। व्हेन प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लान्ड प्रोडक्शन, व्हेन प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट, वहां पर जो डिमांड होगा तब उसको इफेक्टिव डिमांड कहा जाएगा। So in case of effective demand, there is no need of the entrepreneurs to increase production and reduce production. Okay, क्योंकि effective demand कब effective होगा? When demand is effective one. Okay, effective demand means demand is effective one when aggregate demand is equal to aggregate supply. जब aggregate demand aggregate supply से समान होगा तब जो demand होगा वो effective demand होगा। और जब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम केस में कोई चेंजेस नहीं है, हम अगर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा तो चेंजेस होगा, क्योंकि AD ग्रेटर देन AS, कि AS ग्रेटर देन AD, कि सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग। जब डिसइक्विलिब्रियम होता है तब चेंजेस आएगा। चेंजेस टेक प्लेस इन द इकोनॉमी व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। मगर इक्विलिब्रियम जब AD इज इक्वल टू AS है, तब देयर इज नो नीड ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स टू चेंज द प्रोडक्शन। तो वही है इफेक्टिव डिमांड। So effective demand means the demand is effective one when aggregate demand is equal to aggregate supply. आपको confusion नहीं होना है। ओके, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से समान होगा उसी डिमांड को हम इफेक्टिव डिमांड बोलेंगे। और जो वो डिमांड हमको प्राप्त होगा उसी डिमांड में देयर इज नो नीड ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स टू चेंज द प्रोडक्शन लेवल। उसी चीज को मैं लिख दिया यहां पर। क्लियर? सो फ्रेंड्स, please comment me, like me and subscribe my channel असित सरिकोमनिया। सो आगे मैं और अच्छा वीडियो में लाऊंगा, और थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए आप मुझे लाइक कर दीजिए। ओके, तो आपका कमेंट से मैं कुछ मॉडिफाई, मेरा जो आगे में जो वीडियो लाऊंगा उसमें कुछ मॉडिफाई करूंगा, और वो वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।